students, today we'll discuss the topic non-aligned policy. So students, during the Cold War period, there were certain countries who were not so willing to join the two groups, capitalist group and the communist group. So such country, they decided to form a separate organization, that is non-aligned group. So they started a non-aligned movement. They followed a policy which says that they will neither join any of the group, instead they will focus on their development, their economic development, because these countries were the developing countries, they were the underdeveloped countries. So developing and underdeveloped country, these two set of countries, their focus was to first ensure their economic development. So this is the reason they didn't join any of the group. And जो नॉन अलाइन पॉलिसी का अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें, सो दिस फ्लो चार्ट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द वन मार्कर perspective that how it all started. So as you know that India was the proponent of Afro-Asian unity. इंडिया का ये विजन हमेशा से रहा है to unite all the countries of Asia and Africa, because Asia and Africa में generally all developing countries आती हैं. So 1947 March, we got independence in August. So before independence, we hold a conference in New Delhi, that is Asian Relation Conference. Then next development was the Bandung Conference or the Afro-Asian Conference. It held in 1955, in which most of the countries of Asia and Africa, they met together for the first time and they discussed about the Cold War situation, and then they finally in this conference they decided that they need to make a group of the developing country. So decision Bandung Conference में लिया, and finally in 1961 first NAM summit took place in Belgrade. So students, this we will discuss in detail through the PPT. So now we will discuss it through the PPT. Hello students, so today we'll continue with our topic non-aligned countries. So non-aligned जो countries हैं उनकी जो policies हैं, we had discussed in the previous class that how Nehru formulated the policy and how other countries they too supported this policy, and it helped other countries to maintain independence, to maintain their sovereignty. Now student, there are certain allegations on non-aligned policy which we will discuss today. कुछ जो critics हैं वो ये कहते हैं कि it's a policy of isolationism. Isolationism means कि world affairs से बिल्कुल दूर रहना. So वो कहते हैं कि भाई ये कोई फॉरेन पॉलिसी, जो ये नॉन अलाइंड पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी में आप फॉलो कर रहे हो, ये सही पॉलिसी नहीं है. जो वर्ल्ड अफेयर्स है उनसे एकदम दूर रहना, अलग रहना, दिस इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी. सो हम ये डिफेंड करते हैं कि नो, नॉन अलाइंड पॉलिसी वॉज नॉट एट ऑल द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, बिकॉज during the Cold War, the non-aligned country, they played a very good role in reducing the conflicts. They played a very active role in mediating various conflicts. कोई भी suppose कोई conflict world में होता और ऐसा लगता है war होने वाली है, तो they work as a valve, एक safety valve की तरह वो काम करते ताकि वो जो conflict है उसी समय ख़त्म हो जाए और वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी. सो इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल था. तो इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ जिन्होंने भी नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया, वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी में नहीं थी. तो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड टू यू दैट डू यू थिंक दैट नॉन अलाइन्ड पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म? यू विल से नो, it is not, because we not only India but all the non-aligned countries, they played good role in mediation. They tried to reduce the conflict.
अब जो सेकेंड एलिगेशन जो लगता है दैट इट्स पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, कि कोई भी चीज़ है उसमें आप एकदम न्यूट्रल रहो, कुछ भी रिएक्ट मत करो. सो दिस रेफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, कि वॉर सीन्स में अगर कहीं होता है तो आप एकदम अलग रहो, आप अपने किसी चीज़ से मतलब नहीं रखो. तो ये भी गलत है. आप डिफेंड करोगे कि नो, आपको नॉन अलाइंड पॉलिसी को डिफेंड करना है. आपको कहना है कि न्यूट्रलिटी नहीं है, हम कोई चीज़ों से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम कोई डर के वॉर सीन से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं, हमारा जो पोजीशन है वो ये है कि वी want to maintain peace, we don't want to encourage wars. दिस इज़ द रीज़न वी आर न्यूट्रल, कि हम अलग रह रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि डर के मारे, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी. सो दिस इज़ द रीज़न दैट कि नॉन अलाइंड पॉलिसी ये बिलीव करती है कि कैसे हम पीस इस्टेब्लिश करें, कैसे वायलेंस नहीं हो, और कई मामलों में दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर. उन्होंने वॉर्स को रुकने से बचाया भी है. सो टू की फैक्टर्स दैट यू नीड टू टेक केयर, आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी. दोनों में आपको डिफेंड करना है कि नाइदर इट इज़ आइसोलेशनिज्म नॉर इट इज़ न्यूट्रलिटी. इन फैक्ट इट्स अ वेरी एक्टिव पॉलिसी. It's a very active policy because it tried to reduce the conflict, it tried to prevent the war, it tried to help all the countries to develop not only their own economy but also to give opinions to the superpowers that please do not involve in any kind of war or violence, so that कि वर्ल्ड में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो. Now class, now in this paragraph we will discuss about the various initiatives taken by India to ensure Afro-Asian unity. ये बहुत सारे वन मार्कर्स हैं इसमें. जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया ने कन्वेन करी थी. हम इंडिपेंडेंस हमें मिली अगस्त 1947, और मार्च में ही इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने ये कॉन्फ्रेंस इनवाइट करी. क्यों करी? ताकि एशियन कंट्रीज़ में आपस में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो. तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इतना बड़ा स्टेप लेना. सो दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया के जो एफर्ट्स थे वो काफ़ी रिमार्केबल हैं टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन यूनिटी between the African countries, between the Asian countries. So now next thing that you need to know that India also supported the freedom of Indonesia. इंडोनेशिया का फ्रीडम स्ट्रगल को भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. तो ये इंडियन एफर्ट्स है. अगर आपसे 4 मार्कर में पूछ लिया जाए दैट व्हाट वर द वेरियस एफर्ट्स डन बाय इंडिया टू एंश्योर एफ्रो एशियन यूनिटी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. नंबर 1, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 47 में ऑर्गेनाइज करी. देन इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया. नाउ थर्ड वन इज़ द बांडुक कॉन्फ्रेंस. इसको एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इसको बांडुक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. बांडुक इज़ इन इंडोनेशिया. इट वॉज हेल्ड इन द ईयर 1955, और इसी में पहली बार एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ पहली बार आपस में एक जगह पर इकट्ठी हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम दे ऑल मेट with each other, the leaders they all met with each other, and then they planned for the future of Asia and Africa. तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अब अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए वो यहाँ आई कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा है, तो व्हाट नाउ वी सपोज टू डू, हाउ वी शुड रिएक्ट. सो देन उन्होंने कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, वी विल इस्टेब्लिश नैम. तो नैम को बनाने में, उसको डिसीजन लेने में बैंडुक कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. यहीं पे 55 में दे डिसाइडेड. फिर 56 में इन्होंने एक और मीटिंग करी, एंड देन फाइनली उस मीटिंग में अप्रूव हो गया. और फिर उन्होंने एक समिट ऑर्गेनाइज करी, ऑफिशियल समिट ऑफ नैम, ऑफिशियल मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड पॉलिसी इन बेलग्रेड in the year 61. So 61 बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया. सो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी टाइमलाइन. सो ये इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज दैट व्हाट वाज द नॉन अलाइंड पॉलिसी इन द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट.
अब नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट जब आई तो उस समय उन्होंने नैम पॉलिसी को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो प्रो यूएस सपोर्टर्स थी, वो चाहती थी कि यूएसए के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। और उन्होंने नेहरू टाइम्स में, इंदिरा गांधी के टाइम्स में उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया नॉन अलाइन पॉलिसी को ट्रू स्पिरिट से फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ट्रू स्पिरिट से फॉलो होता तो इंडिया यूएसएसआर के क्लोज नहीं होता, क्योंकि हम नॉन अलाइन पॉलिसी फॉलो तो कर रहे थे बट वी वर मोर क्लोज टू यूएसएसआर। तो ये जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अब यूएसए के भी क्लोज रहेंगे, हम सिर्फ यूएसएसआर से ही रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे, हम यूएसए से भी करेंगे। तो इसको हम कहते हैं दैट इज अ जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। सो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट वाज announced by the Janata Party government in the year 1977। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 77 में, और उन्होंने जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट अनाउंस किया। और उनका मतलब मोटिव क्या था? उनका मोटिव ये था टू इम्प्लाई द टू इम्प्रूव द प्रो सोवियत टिल्ट। जो हम सोवियत कंट्री के लिए जो हमारा टिल्ट था, जो हम उनको इतना सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये करेक्ट होना चाहिए, अब हमें प्रो यूएस बनना होगा। सो उन्होंने ट्राई किया कि दोनों के बीच में बैलेंस हो, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट was brought by non-Congress government. So class, now again we will discuss about the allegations, कि कुछ allegations हैं इंडियन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ वेरी पैसिव काइंड ऑफ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है फ्लीइंग अवे की पॉलिसी, कि हम क्या कर रहे हैं, टू अलाइंसेस से दूर जा रहे हैं, अलूफ जा रहे हैं, और इंटरनेशनल मैटर्स में हम एक्टिव नहीं हैं, हम बचना चाह रहे हैं। तो आपको अगेन डिफेंड करना है, नो इट्स नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। जो क्रिटिक्स बोलते हैं वो गलत बोलते हैं कि हम कोई भाग नहीं रहे चीज़ों से। हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो, राइवलरीज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सब लोग पीसफुली रहें, यूनाइटेड रहें। दिस इज़ द रीज़न दैट वी चोज टू अडॉप्ट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इट्स नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, ये भागने वाली पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये तो वो पॉलिसी है विच ट्राइज टू इस्टेब्लिश पीस, which tries to avoid violence, try to prevent the war. So this is the reason we adopted this. Now a very important example that हमारा major role कोरिया वॉर में बहुत ज़्यादा था। अगर आपको डिटेल में बताना चाहे, अगर 6 मार्कर में पूछे तो आपको बताना पड़ेगा that we played a very remarkable role in the mediation between the Cold War rivals in the Korean War of 1950। जब कोरिया में ये इशू चल रहा था तब इंडिया ने मीडिएशन किया था ताकि कोरिया में वॉर स्टॉप हो जाए। सो दिस इज़ द रीज़न दैट आर पॉलिसी इज़ क्वाइट जेन्युइन, आर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो इसके एडवांटेजेस भी हुए इंडिया को, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के इंडिया को काफ़ी सारे एडवांटेज हुए। तो ये भी आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ऐसे तरीके हैं जिससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। फर्स्ट इज द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंसेस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। सो हमारे जो डिसीजंस हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट, बोल्डली, आराम से ले पाए और हमारे इंटरेस्ट में ले पाए, नहीं तो हम नहीं ले पाते। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, दैट वी ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। अगर कोई और एक डोमिनेंट हो रहा है तो हम दूसरे जो सुपर पावर है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने एक बैलेंस बना लिया और हम किसी के अनड्यूली प्रेशर में भी नहीं आए कि कभी हमें ऐसा इग्नोर्ड फील हुआ। तो हमें था कि जहाँ सपोज़ एक अगेंस्ट हो रहा है तो हम दूसरे के सपोर्ट में चले जाते हैं, जैसे यूएस अगेंस्ट जाता। अब मैंने आपको 62 वॉर में बताया था कि 1962 वॉर में यूएसएसआर ने हेल्प नहीं करी तो हमने यूएस से हेल्प ले ली,
और 71 वॉर में यूएस ने हेल्प नहीं करी तो हमने यूएसएसआर से हेल्प ले ली। तो इससे हमें क्या मिला, एक सपोर्ट मिल गया कि जब जैसे ज़रूरत हो तो दिस इज़ द रीज़न कि कोई एक ग्रुप हमारे ऊपर हावी नहीं हुआ। सो नाइदर अलायंस सिस्टम को टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट। सो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिला। सो ये आपको ध्यान रखना है, 2 मार्कर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एडवांटेज was to take international decision in an independent manner. Second, to take help from both the countries and to able to balance one superpower against the other. Now lastly the criticism, कि इंडियन नॉन अलाइंड पॉलिसी का क्रिटिसिज्म कैसे होता है, ये मैंने आपको कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ाया था, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, सो वी विल रिपीट अगेन दैट फॉर नंबर 1 अनप्रिंसिपल्ड। इंडिया की जो नॉन अलाइंड पॉलिसी है बिल्कुल भी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती। ये कुछ एलिगेशंस हैं, ऑल्दो हम इनको डिफेंड कर सकते हैं, बट क्रिटिसिज्म के ये 2 पॉइंट्स आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। हम कहते हैं हम नॉन अलाइंड है, पर फिर भी हमने क्या किया कि इंटरनेशनल मैटर्स में कोई भी फर्म स्टैंड नहीं लिया। मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसमें, सुएज कैनाल इशू जब ब्रिटेन ने अटैक किया तो हमने क्रिटिसिज्म किया, यूएसएसआर ने हंगरी पर अटैक किया तो हमने क्रिटिसिज्म नहीं किया। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी बिल्कुल भी प्रिंसिपल्ड नहीं है, वैल्यू बेस्ड नहीं है। फिर सेकंड जो क्रिटिसिज्म है वो है इट्स इनकंसिस्टेंट। हमने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया। तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि भैया आपने तो ट्रीटी साइन कर ली, फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ, वो भी 20 ईयर्स के लिए साइन कर ली, तो फिर आप कैसे नॉन अलाइनमेंट हुआ। तो ये क्रिटिसिज्म भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में किया जाता है, दैट इट इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी। बट अगेन वी कैन डिफेंड, हम डिफेंड कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उस समय हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा सपोर्ट था वो यूएसएसआर का था। सो दिस इज़ द रीज़न कि पॉलिटिकल रिलेशंस हमने मेंटेन किए, पर हमने उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। वी वर नॉट द कम्युनिस्ट कंट्री, वी डिडंट अडॉप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, सो इसको हम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं कहते। These are the 2 major criticism against the non-alignment policy followed by India. So again I am repeating the keywords. Number 1 unprincipled and number 2 inconsistent. Unprincipled में आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे यूएस को सपोर्ट नहीं किया और यूएसएसआर को सपोर्ट किया इन 56, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी। और इनकंसिस्टेंट में फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 71. So this is all about the non-alignment policy. So I hope student you all have understood. Thank you student. Thank you.